So good morning, all of you. सुप्रभात. हाँ हाँ, क्वेश्चन था आपका. यूटोपियन कहते हैं. क्यों कहेंगे? यूटोपियन तो वो होता है जो संभव ना हो, वो तो कुछ करने के लिए कह ही नहीं रहे. नहीं, वो ऐसा कुछ है ही नहीं. पोस्ट मॉडर्निज्म तो क्रिटिक ऑफ थ्योरीज है. तो यूटोपियन क्यों कह रहे हो? यूटोपियन वर्ड नहीं सही. अभी पहले पढ़ेंगे तब डिसाइड करो. ठीक है. हम लोग कर रहे थे एंड ऑफ हिस्ट्री. हमारा मेन क्वेश्चन है टू अंडरस्टैंड वेदर लिबरलिज्म हैज वन द बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज. अब ये स्टार्ट कहां से हुआ? ये स्टार्ट हुआ विथ फ्रांसिस फुकुयामा's बुक द एंड ऑफ हिस्ट्री. 1989 में पहले ऐसे लिखा और उसके बाद बुक लिखी. तो पूरा टाइटल क्या बन गया? द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन. अब लास्ट मैन का मतलब क्या? कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स human life will be more like a life of animals. Why? Because we don't need to think. Why we don't need to think? Because all of our questions are solved. Fine. So what has been our question? Our question has been, what is the best way of life? So the best way of life means which can fulfill the most basic needs of man in the best possible way, and that formula has been discovered. And what is that formula? Liberal democracy. Liberal democracy as a political system and capitalism as a economic system. Fine. तो यहां तक हमने किया. ठीक है. And then end of history and the last man. So as a last man, this search is over. ठीक है. लास्ट लाइन क्या थी? ठीक है. एक चीज, मतलब इसी को और सिंप्लीफाई करके ऐसे समझो कि what has been the central question in philosophy. Since beginning. प्लेटो के टाइम से हम क्या ढूंढ रहे हैं? आइडियल स्टेट, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. What has been the central question in philosophy since beginning? Underline करो since beginning. Means since the time of Plato. डैश करके लिखो. देखो, we are searching the ideal state. उसका फॉर्मूला सर्च कर रहे हैं आइडियल स्टेट का. अंडरलाइन करो आइडियल स्टेट. मीन्स विच कैन प्रोवाइड द बेस्ट possible way of life.
on this earth. ठीक है, अब लिखो and according to Fukuyama, we have found the answer. And you know the answer. And history has proved. We have found the answer. Arrow करके लिखो. And evolution of human history has proved that. ठीक है, अब इसमें एरो करके लिखो. इवोल्यूशन कैसे? देखो राइट, नो अदर सिस्टम हैज सर्वाइव्ड. ठीक है, तो कैसे, कौन सिस्टम्स आए, कौन सिस्टम गए. ठीक है, तो पहले लिखो फॉर एग्जाम्पल टिल 17th century, डैश करके लिखो, देयर वॉज अ रूल ऑफ रिलीजन. लिखो इन 17th century we see the emergence of liberalism. अंडरलाइन करो लिबरलिज्म. अब लिखो इन इट्स जर्नी liberalism confronted two challengers. First, right, fascism, डैश करके लिखो, ended in First World War. No, Second World War. Second लिखो communism, लिखो ended in 90s. 90s अंडरलाइन करो, द एंड ऑफ कोल्ड वॉर. ठीक है, आप लिखो राइट, अकॉर्डिंग टू हिम देयर appears no potential challenger. अब ये 90s की बात है. देयर appears no potential challenger. एरो करके लिखो, लिखो अराउंड द वर्ल्ड everyone is embracing adopt कर रहे हैं, embracing liberalism as a political system as well as a economic system. एरो करके लिखो, देखो दिस इज empirically established. Empirically established अंडरलाइन करो, देखो we can see this happening. आप इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं?
Point number 1, the countries which were formally communist, that is in Eastern Europe, are turning to democracy and capitalism. Second point, countries like India, which were politically liberal but not economically, have also embraced capitalism. Next, लिखो, right? China, though retaining communism in political sphere, has embraced market oblique capitalist economy arrow करके लिखो. Thus there is no contender to the idea आइडिया अंडरलाइन करो. कौन सा आइडिया? लिबरलिज्म. नो कंटेंडर टू द आइडिया, दैट इज लिबरलिज्म. लिखो, if China is holding communism, it is by force. It does not mean idea of liberalism is in question. Right? Even in China, we have seen the protests. Which protest? Tiananmen Square. But they have been suppressed. It means that idea is taking its shape. Arrow करके लिखो. Thus, idea, which idea? Liberal democracy, is present in its empirical form, observable form. Which philosopher you will relate? अच्छा, तुमने पढ़ा नहीं? पढ़ तो लिया. Idea in its empirical form. नहीं याद आ रहा? नोट्स है तुम लोग के पास अपने? ये मूंगफली वाले को दे दिया ठंड में है. नोट्स लो और मूंगफली दो. हम लोग होते तो ऐसे ही करते. तुम लोगों ने अभी तक ऐसा कोई नहीं किया? कोई फिलोसफर नहीं याद आ रहा है जिसने कहा आइडिया बिकम्स मैटर? कौन है? हीगल. रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल. ठीक है. आइडिया टर्निंग इनटू मैटर. एरो करके लिखो. देखो, the views represented by Hegel.
अब लिखो सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन फुकुयामा। राइट, पहला इन्फ्लुएंस ऐसे लिख लो, हेगल। हेगल एंड सेकंड, राइट, कि नहीं पाओगे। माय फेवरेट फिलोसोफर, you can call it Nietzsche, but the proper pronoun is Nietzsche. नीचे और नीच, नीच है वैसे। हाँ, नेस्ले नहीं, नीच, बट इंडिया में नीच वर्ड ठीक नहीं लगता है, तो फिर इंडिया में नीच से बोलते हैं। ठीक है, नीच से, फाइन। So he has, in order to prove the concept of end of history, he has applied the methodology of Hegel. Fine. तो पहले लिखो influence of Hegel. In order to explain his concept of end of history, he adopts methodology of Hegel. ठीक है, अब लिखो what is Hegel's view on history. लिखो according to Hegel, human history is a product of dialectical movement of idea. अंडरलाइन करो, डायलेक्टिकल मूवमेंट ऑफ आइडिया। आइडिया ड्राइविंग फोर्स है। कौन सा आइडिया आगे जाता है? जो बेटर आइडिया है, निगेशन ऑफ निगेशन। डायलेक्टिकल आइडिया, लिबरलिज्म था तो कम्युनिज्म था, जो निगेट हो गया वो कॉन्ट्रोडिक्शन था। डायलेक्टिकल आइडिया क्या लिखा है? डायलेक्टिकल मूवमेंट ऑफ आइडिया। इसका मतलब है, एरो करके लिखो, ओनली सुपीरियर आइडिया moves forward and the contradiction gets negated. ठीक है, तो अब लिबरलिज्म आगे क्या? एंड फासिज्म एंड कम्युनिज्म हैज गॉट निगेटेड। ठीक है, इसको अब, एक तो है डायलेक्टिकल मूवमेंट ऑफ आइडिया, इसको अगर हम और सिंपली लिखें, एरो करके लिखो, देखो, अकॉर्डिंग टू हेगल, human history is a evolution of human reasoning.
ब्रैकेट में लिख दो मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, रिविलेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट या यूनिवर्सल स्पिरिट, मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। मतलब ये समझ में आ रहा है, ह्यूमन रीजनिंग आगे चलती जाएगी। एरो करके लिखो, लिखो एन, लिखो राइट, द व्यू ऑफ हिस्ट्री रिप्रेजेंटिंग एनलाइटनमेंट। अंडरलाइन करिए एनलाइटनमेंट। दे टेक प्रोग्रेसिव व्यू ऑफ हिस्ट्री। ह्यूमन रीजनिंग प्रोग्रेस करती जाएगी, प्रोग्रेसिव व्यू ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो एक तो इंटरप्रिटेशन, तो आगे जो रह गया वो ज्यादा प्रोग्रेसिव था, तो लिबरलिज्म। ठीक है, अब सेकंड इन्फ्लुएंस लिखे, इतने अभी नीचे से नहीं लिखो या इसी में लिखो, सेकंड इन्फ्लुएंस अभी लिखो। एक और स्कॉलर जो हीगल का ही इंटरप्रिटेशन करते हैं, सेकंड इन्फ्लुएंस कॉपी में आप लिखे अलेक्जेंडर कोजिएव। पता नहीं इस क्लास में मेरी स्पेलिंग खराब हो जाती है तुम्हें। अलेक्जेंडर, आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस स्पेलिंग, कहीं ए है ना, अलेक्जेंडर कोजेव, कुछ हंगेरियन है, अलेक्जेंडर कोजेव। ठीक है, अब अलेक्जेंडर कोजेव एरो करके लिखो, हैज रीइंटरप्रेटेड हेगल। अब क्या रीइंटरप्रिटेशन हो गया? So scholars like Karl Popper, they put Hegel as an enemy of open society, a thinker whose ideas lead to totalitarianism. But Alexander Kozev said that is misreading of Hegel. Actually, Hegel is not a philosopher of totalitarianism. He is a philosopher of freedom. Fine. So Hegel needs to be reinterpreted, and human history, the way he explains is realization of freedom. So he also interpret Hegel in this way. ठीक है, reinterpretation of Hegel। तो reinterpretation एरो करके समझो, लिखो a trend had emerged where Hegel was being treated as the scholar of totalitarianism. ब्रैकेट में एग्जाम्पल लिख लो, कार्ल पॉपर। ठीक है, अब लिखो राइट, ऑन द अदर हैंड कोजेव projects Hegel as a supporter of freedom. Right? His theory of human history that is evolution of human reasoning means taking human civilization towards the higher state of freedom.
अंडरलाइन करो, हायर स्टेट ऑफ फ्रीडम। इसका मतलब है, राइट, देयर इज अ इनहेरेंट डिजायर in humans to liberate themselves. ठीक है, तो ह्यूमंस, अब इसको हम और क्या बोल सकते हैं, एरो करके एक और लाइन लिखो। इट मीन्स द टीलियोलॉजी ऑफ ह्यूमंस इज freedom from restraints. Teleology of humans is we want to be free, freedom from restraints. अब इसी में एक क्वेश्चन लिख लो समझने के लिए। Which form of government, which form of government can give greatest scope for freedom? Communism. Answer is liberal democracy. Liberal democracy. इसका मतलब है, लिखो, राइट, लिबरल डेमोक्रेसी इज अ रैशनल चॉइस। एनी रैशनल पर्सन विल गो फॉर डेमोक्रेसी ओनली। या तो दिमाग की कमी चाइना वालों में कि उनको लिबरल डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, या बाई फोर्स उनको सप्रेस किया गया है। ईदर, इन ईदर सेंस वी कैन ओनली सिंपैथाइज विद देम। ठीक है, या तो वो पागल लोग हैं तो भी सिंपैथी के पात्र हैं, और उनके साथ टोटलिटेरियनिज्म सरकार कर रही उनकी, तो भी वो हमारी सिंपैथी के पात्र हैं। न्यू ईयर पे चाइना को भेजना चाहिए सिंपैथी कार्ड, है ना। लो भैया, तो ये कोई भी रैशनल पर्सन विल गो फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, तो एक तो हीगल का इन्फ्लुएंस है। अब सेकंड लिखो, नीत्शे, इन्फ्लुएंस ऑफ नीत्शे। नीत्शे तो मस्ट है, सबको पढ़ना चाहिए। मतलब अपने सिलेबस में तो बहुत लिमिटेड है, फिलोसफी में पढ़ा जाता है, लेकिन पढ़ो जरूर नीत्शे। तो फिलोसफी ऑफ नीड्स, इसमें लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ विल्स। नीत्शे पढ़ के शायद हिटलर पहले था बाद में था, हिटलर का कोई कम, मतलब हिटलर बन गया। नीत्शे ने कहा डेथ ऑफ गॉड, कोई भगवान नहीं है। हाँ, वी किल्ड द गॉड, तो उसने बन गया हम नए भगवान। इसीलिए जिसको भगवान बनना है, पावर लेनी, नीत्शे को पढ़ना चाहिए। कौन क्या, कहाँ से पढ़े, एक्स्ट्रा क्लास, यहाँ नॉर्मल के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। चलो नीत्शे, लेकिन कोई तो समरी ममरी कुछ तो पढ़ो, नहीं तो उसके जो मोटिवेशनल कोर्स है वो ही पढ़ो। मतलब नीत्शे पढ़ना मस्ट है, वरना लाइफ बर्बाद। एक आ सत्या सर की क्लास, वो नाराज होंगे, कहते हैं लेट मी ब्लूम एज अ टीचर। ही कीप्स ऑन टेलिंग मी आप पॉलिटिक्स में जाओ मैम, पॉलिटिक्स में जाओ। आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाई ही सेज सो। आफ्टर ऑल ही इज बिकमिंग पीटर। हाँ हाँ, ही इज थिंकिंग। तो अभी हम वैसे पढ़ेंगे कौन, फ्रांसिस फुकुयामा। और फुकुयामा का क्रिटिसिज्म किसने किया, सैमुअल पी हंटिंगटन ने।
और दोनों का रिलेशन क्या है? हंटिंगटन टीचर है फुकुयामा का, तो अब तक स्टूडेंट थे पीटर, लेकिन हंटिंगटन ने बोला ये नहीं, हम अब गलती नहीं होने देंगे, ठीक है, वी विल नॉट गिव यू एनी सच अपॉर्चुनिटी टू बिहेव पीटर, ठीक है। एंड देन फुकुयामा काउंटर्स कि पढ़ाया कुछ और था, बता तुम कुछ और रहे हो, विल नॉट लेट यू डेविएट, ठीक है। तो अब ये है लिबरल, लेकिन जो फुकुयामा है, सॉरी हंटिंगटन है, वो मतलब कॉन्जर्वेटिव है, तो वो कहेगा हिस्ट्री रिपीट हो रही है, इट्स नॉट, हिस्ट्री इज प्रोग्रेसिंग। तो वी स्टार्टेड विथ द सोसाइटी बेस्ड ऑन रिलीजन, वी विल एंड अप विद द सोसाइटी बेस्ड ऑन रिलीजन, ठीक है। तो अब हम कहाँ पहुंच गए? नीचे कॉन्सेप्ट ऑफ विल्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ विल्स, अंडरलाइन करो विल्स, दैट इज will to power, will to power, देखो according to Nietzsche there is a strongest will in man, that is will to power. will to power, और सिंपली समझना है आपको, एरो करके लिखो, will to recognition, इंसान को चाहिए जिंदगी में रिकॉग्निशन, ठीक है। will to power, पावर मतलब रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब रेस्पेक्ट और डिग्निटी, एरो करके लिखो, देखो दिस विल इज स्ट्रोंगर, दिस विल इज स्ट्रोंगर देन will to life, ठीक है। देखो राइट, पीपल विल प्रेफर टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर रिकग्निशन, खतरे आप क्यों मोल लेते हैं रिकग्निशन के लिए, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग विल है, एंड दिस विल डेवलप in all humans at some point of time, you cannot live without it, okay। अब next लिखो, right, he he also takes the concept of morality of Nietzsche, morality of Nietzsche, अब लिखो according to Nietzsche there are two types of persons, ए लिखो, लिखो मास्टर मेंटेलिटी, मास्टर है, मार्टेयर नहीं, मास्टर, मास्टर मेंटेलिटी, रूलिंग मेंटेलिटी, ठीक है। आगे लिखो लायंस, या नहीं वुल्व्स, मास्टर में लिखो वुल्व्स, वुल्व्स WOLVES, वुल्व्स। सेकंड लिखो स्लेव मेंटेलिटी, आगे लिखो शीप्स, शीप्स एंड वुल्व्स। शीप्स की खासियत क्या लिखे? फियर, और मास्टर मतलब करेज, करेज मतलब एबिलिटी टू टेक रिस्क,
Who becomes master? One who takes risk. And to become a master, you have to risk your life also. And there is no point living like sheeps. If you live life like king size. कौन कहता है? अक्षय कुमार. लिव लाइफ किंग साइज किसी ऐड है? शाहरुख खान? किसी कोई ऐड है ये? पिक्चर नहीं देखते तो याद नहीं रहता है. ये जीना भी कोई जीना है ना? किसका है? तुम्हें ज्यादा जानकारी? अरे ठीक है, मतलब live like king, otherwise if you live like sheep that's useless. तो master mentality और the slave mentality. हमने क्या लिखा है? कौन सी slave? master या ruler mentality. ठीक है, तो अब इसमें लिखो how Fukuyama applied. How Fukuyama applied these concepts. Right, to show the evolution of history. अब इसमें लिखो who are the makers of history. हिस्ट्री किसने बनाई? लिखो those with master mentality. Why Gandhi did what he did? Master mentality, will to power, recognition. ठीक है, और गांधी रिकॉग्निशन के चक्कर में he got assassinated also, है ना? But he preferred that. Fine. So you need to have that, and this is the master mentality. Lions या wolves. हाँ वही है. कुछ लोग मरना बेहतर समझेंगे. Even Bhagat Singh you can say. Fine. So why people go for these type of risks? Because they have that master mentality. Fine. And they have been the moving force of history. Okay, so in this way he has applied Nietzsche's idea. Okay, so now understand his concept of end of history. ऐसे लिखे. लास्ट मैन तो समझ में आ गया. अब लिखे his concept of end of history. Fukuyama's concept of end of history. एरो करके लिखो. राइट, Fukuyama described the end of Cold War as inverted commas में लिखो end point या highest point, end point of man's ideological evolution. End point of man's ideological evolution, arrow करके लिखो, means we cannot think more or better. सब रास्ते यहीं खत्म होते हैं. We cannot think more, we cannot think better, there cannot be any superior thinking. पहले first point. अब second point लिखो. लिखो end of history does not mean
end of events, right? Events will keep on happening. He explains history in Hegelian sense. Hegelian sense underline करो, मतलब in terms of movement towards the ultimate idea. So often people get confused that he said end of events, but it is not end of events, it is end of history. अब देखते हैं how history has moved. देखिए, अब लिखो how history has moved. अब हाउ हिस्ट्री हैज मूव्ड का पर्पस है ये समझना कि व्हाई वी रीच टू लिबरल स्फीयर. सो हाउ हिस्ट्री हैज मूव्ड. एक और इन्फ्लुएंस था, यहाँ पे लिख देते हैं. देखो, राइट, फुकुयामा टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम प्लेटो. ठीक है, व्हाट इंस्पिरेशन. देखिए, द ट्राईपार्टाइट या थ्री फोल्ड classification of qualities of human soul. ठीक है, तो what are the qualities? पहला लिखो reason, second courage, third appetite. courage के आगे एक और better word लिखो spirit, और उसका ग्रीक वर्ड लिखो थाइमोस. थाइमोस. ठीक है, अब लिखो फुकुयामा inspired by Nietzsche also gives greatest importance to thymos or spirit. अब लिखो what is spirit. स्पिरिट क्या है? मूविंग फोर्स है. लिखना नहीं चालू करो, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं. स्पिरिट क्या है? मूविंग फोर्स है, जिसके कारण आप मूव करते हैं. ठीक है, तो can you achieve anything even in your ethics or in your essay papers? You should always prepare for, क्योंकि कुछ values पर essays भी आते हैं. ठीक है, you should do an extensive reading of courage.
and the role of courage. Even reason cannot do anything if you do not have courage. तो courage क्या है? Spirit है. Courage ही आपको मतलब it provides you motivation to do something. Fine. So what is most important? Courage. You achieve something primarily because of your courage. You at least try. You are here. Many of your friends may be working in MNCs and getting money, but they are people with slave mentality. They will never become master. उन्होंने सोचा ही नहीं ना, because they are finding happiness in what they are doing. And who knows you? If you are sitting in front of a computer, who knows you? Fine. But if you screen ही ज्यादा से ज्यादा, मतलब you are faceless, you are nameless, but as a collector, people know you. They know you by name, they know you by face. आप स्क्रीन के पीछे बैठ के कितना भी कमा लो, that satisfaction you will not get, which you will get by the recognition. As a collector, you will get more happiness with the people bringing very small things. Some people even bring bananas, they bring some fruits, but that cannot be compared with the packages they may be getting. You go and purchase a banana and you go and you get it as a recognition. There is a big difference. Fine. So those again, those who never tried means they could never take a risk. You are successful or you are failure, but you are still better than them because you took the risk. You are a man of spirit. You are a man of courage. You are a person with the winner mentality or a master mentality. Important है ना, होना नहीं होना is a different thing, because you can't control everything. But what is most important? You thought about it. Others may have been so insecure that they could have not even thought to go for such a challenging thing. So what should be giving you happiness? You even thought, you tried your best. ठीक है. तो अब जैसे इंटरव्यू में पूछे कि भाई बार बार क्यों दे रहे हो या क्यों छोड़ के आए हो, तो सिलेक्शन matters a lot, but even if not, it gives me a sense of well-being, because it shows or it tells that I am different from many those who have not attempted, because no thing that I always say, something which is worth is never easy. Fine. If something is easy, that's not worth it. That's a simple formula. And this is what the thymos, you get something because of the spirit. तुम्हारे जो साथ वाले हैं उनमें रीजन ज्यादा होगा, कैलकुलेशन होगा, भैया फेल हुए तो इतने दिन की सीनियरिटी, पैसा, नुकसान, लेकिन उनका मिसिंग पार्ट क्या है? स्पिरिट. तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्पिरिट? Spirit is something which is more important than reason also. Fine. Spirit is more important than appetite also. ठीक है. Because many of you at times may not be knowing why you are doing what you are doing. आपको नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज आपको ड्राइव करती है. आपको नहीं पता कि आफ्टर बिकमिंग अ कलेक्टर व्हाट यू आर गोइंग टू डू, लेकिन फिर भी आप
जो काम पहले कर रहे थे, हो सकता है you are not happy with that, a problem that has no name. You may not have understood what was that problem, why you were not happy. You had everything, why you were not happy? Why you were not happy? Because you are made up of some different material. ठीक है, तो आपका मटेरियल क्या था? मास्टर मटेरियल। ठीक है, इसलिए आपकी जो स्पिरिट थी वो वहां सेटिस्फाइड थी ही नहीं। तो शायद फिलॉसफी पढ़ के यू मे गेट सम आंसर्स, अदरवाइज it is very natural that sometimes we do something but we don't enjoy it, fine, because दिल मांगे मोर, क्योंकि आपका मटेरियल अलग है और मटेरियल आपके अंदर, आपकी सोल में ग्रेटर परसेंटेज है थाइमोस का। तो अब क्यों, वाई गोइंग फॉर सिविल सर्विसेज? विल फॉर रिकॉग्निशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो मेनी पीपल, यू कैन सी so many people have so much wealth but still they are doing the things, आप इंडस्ट्रीज को ही देख ले। ठीक है, क्यों, वो क्यों करते हैं? उनको पैसे की कोई कमी थोड़ी है, लेकिन it is how much will for recognition you have in yourself. ठीक है, तो he gives so much importance to thymos. What is thymos? Thymos is a part of our soul which cannot be considered as entirely rational, because your reason makes you cold-blooded. You will not take a risk, fine? So some part of madness is also required. ठीक है, you should be mad, you should not be rational. जब तक आप पागल नहीं होंगे तब तक आप कुछ अचीव नहीं करेंगे। ठीक है, it is good to be mad rather than good to be normal, because no one knows the normal people, people only knows the mad people. हाँ, abnormal नहीं, mad। ठीक है, तो जुनून वही है ना, दिमाग में कुछ छा गया, तो यू रिक्वायर मैडनेस। यही सब, यू नीड टू थिंक डिफरेंटली इफ यू आर राइटिंग एन एसे। तो नॉर्मल लोगों की तरह कभी सोचना नहीं है कि मैडनेस इज बैड, आई शुड बी रिकॉग्नाइज्ड नॉर्मल, बट नॉर्मलाइजेशन इज बीइंग यूजलेस। ठीक है, तो स्पिरिट क्या है या थाइमोस क्या है? वो पार्ट जो थोड़ा थोड़ा हिसका है। ठीक है, यानी थोड़ा थोड़ा पागलपन, दैट इज अ Excuse me, ma'am. यस। You have taught two types of person, master Yes. mentality and slave mentality. हाँ, This can be in one person, both the things. देखो, अल्टीमेटली विल फॉर रिकॉग्निशन सब में है, लेकिन वो डेवलप होती है। ठीक है, अब कुछ लोगों में वो डेवलप करते ही नहीं या उसको सप्रेस कर देते हैं, कुछ लोग सप्रेस नहीं करते। तो सप्रेस नहीं करने के लिए भी आपको करेज चाहिए, कुछ भी करने के लिए करेज चाहिए। यू कैन जस्ट इमेजिन, कैन यू राइट a good essay on courage without knowing Nietzsche? No. ठीक है, तो Simply we can say we can write about courage by defining fear. by Defining fear. हाँ, मतलब what is courage? Which allows you to overcome fear. It is a moving force. What was happening with Arjun? Fear. He was trying to be normal. If he had not fought, who would have remembered? And who was Krishna? The moving force, the spirit inside Arjun, which gave him courage, which gave him motivation. Right? So that is the
idea. Either you get from yourself or you can get from market motivation. ठीक है, ये तो आपके ऊपर है, लेकिन कभी ना कभी जिन्होंने ट्राई नहीं किया वो अफसोस जरूर करेंगे। उस तुम्हारे सामने नहीं बोलेंगे, वो दिखाएंगे कि भाई हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन उनको खुद पता है कि वो अफसोस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो थाइमोस समझ गए, लिखिए क्या लिखा। अब पॉल साइंस पढ़ने के बाद कोई मोटिवेशन का जरूरत है? हाँ, क्या दे दे, हमसे मिल जाता है। तो बेस्ट यही है कि यू शुड बी मैड। ठीक है, हाँ जी। अच्छा वो है, अच्छा की बात नहीं है, अच्छा ये है कि किसकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन ज्यादा है। कई बार आप फेल होके ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे बजाय पास होके, क्योंकि जिस चीज में पास हो गए वो तो आसान ही चीज होगी ना। ठीक है, तो तो आप, मैम यहाँ कई पर लोग हमारे फेल होके ज्यादा खुश होंगे। मैम हमारे पास यहाँ पर हायरार्की है कि कॉरपोरेट वाले हैं, उससे ऊपर सिविल सर्विसेज वाले हैं, फिर सिविल सर्विसेज वाले स्लैब बन जाते हैं मिनिस्टर के नीचे, और फिर मिनिस्टर पीएम के नीचे। तो मैम यहाँ पे कोई ऐसा एक टॉप मोस्ट है जो मतलब उसके पास सबसे ज्यादा अल्टीमेट पावर है, या लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। चलते रहिए, ठीक है। अब चलो, रुकना नहीं है बस। कहाँ पहुंचे आप? व्हाट इज, आप स्पिरिट डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो स्पिरिट में लिखो, राइट। देखो, स्पिरिट इज अ मूविंग फोर्स। स्पिरिट इज अ मूविंग फोर्स, लिखो, राइट। It can be described as that part of our soul which is not entirely rational. Underline करो, not entirely rational। देखो, that is why a person takes risk। ज्यादा रिस्क के काम कौन करता है? जो बच्चे होते हैं, बच्चों में ज्यादा स्पिरिट होती है। ठीक है, वो एक्सप्लोर करते हैं, उनकी लाइफ में भी उनको ज्यादा खुशी मिलती है? मोदी जी को देखिए, he is preparing for the next elections despite knowing he will win, और he doesn't have to prove anything, फिर भी प्रूव कर रहे हैं। लोग होते हैं ना, वो तो अब अंबानी अडानी, इनके पैसे कोई कमी थोड़ी है और कोई रिकॉग्निशन नहीं, लेकिन क्या चीज मूव कर रही है? स्पिरिट, स्पिरिट। चलो, अब थाइमोस हो गया। अब देखो, हाउ या हाउ हिस्ट्री इवॉल्व्ड, हाउ हिस्ट्री इवॉल्व्ड। देखो, हिस्ट्री इवॉल्व्ड बिकॉज ऑफ द पर्सन्स who had master mentality। मास्टर मेंटेलिटी, एरो करके लिखो। देखो, इवन व्हेन people were able to satisfy their basic needs,
right, still they were not satisfied, या their soul was not satisfied. ऐसा थोड़ी है कि इंग्लैंड में खाने को नहीं था तो यहाँ चले आए, लेकिन वो विल फॉर रिकॉग्निशन है. ऐसा थोड़ी है यूएस में कोई कमी, लेकिन वॉर आप क्यों करते हैं? विल फॉर रिकॉग्निशन. ठीक है, अब लिखो राइट, हेंस पीपल वेंट फॉर वॉर्स. एग्जाम का प्रिपरेशन भी वॉर ही तो है. पीपल वेंट फॉर वॉर्स. ठीक है, एरो करके लिखो. लिखो राइट, सम preferred not to go for war. ब्रैकेट में लिख दो इंडिया. उसका एग्जाम्पल नहीं, लेकिन लिख दो, उसने नहीं दिया है. लिखे, लिखो दे बिकेम स्लेव्स. उसका एग्जाम्पल नहीं है, मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं. दे बिकेम स्लेव्स. अब लिखो राइट, ऑन द अदर हैंड those who went for war right, either they became masters or they got recognition. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट समझना होगा हाउ वॉर्स इम्पैक्टेड ह्यूमन लाइफ. हाउ वॉर्स इम्पैक्टेड ह्यूमन लाइफ. देखो, विनिंग बिकेम सो इम्पोर्टेंट. वॉर में रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट ना. winning became so important that led to the evolution of technology. अंडरलाइन करो टेक्नोलॉजी. लिखो वेपन्स टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी. एरो करके लिखो. इट हैड इट्स स्पिन ऑफ इफेक्ट्स. स्पिन ऑफ इफेक्ट्स. लिखो द प्राइम cause behind the growth of technology has been wars. और उनका बाकी पे इफेक्ट होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो या नेक्स्ट पॉइंट लिखो. अकॉर्डिंग टू फुकुयामा, as human society क्या लिखा है हमने? as human society evolves, the need for technological advancement grows many-fold. ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो. विच टाइप ऑफ इकोनॉमी कैन मैनेज the requirement of
the requirement of the technology, जिस लेवल की टेक्नोलॉजी हमें चाहिए वो कौन सी इकोनॉमी मैनेज कर सकती है, इसमें लिखो राइट। देखो, कम्युनिज्म कैन नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट। देखो, स्टेट डज नॉट हैव कैपेसिटी to invest so much in technology. It will require private participation. ठीक है, अब ये क्यों होता है? बिकॉज technological needs are very diverse and complex. It has to be done at a very micro level. For example, this institute will have its own technological requirements. It has to be demand driven. Government cannot think about the need of technology in microsphere. एक दुकान को क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, गवर्नमेंट नहीं सोच ही नहीं सकती, ना तो उनके पास उतने रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो प्राइवेट इनिशिएटिव से ही टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हो सकता है, बिकॉज टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स आर टू कॉम्प्लेक्स। इज दैट क्लियर? अब क्या लिखा है हमने? गवर्नमेंट कैन नॉट, it will require people's private sector's participation. अब लिखो राइट, because technology is too complex, it requires micro perspective. माइक्रो पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब लिखो राइट, ओनली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैन फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ मैन बेसिक नीड्स ब्रैकेट में लिखो एपेटाइट in a most efficient manner. अब क्वेश्चन लिखो, what is the consequence of टिश्यू पेपर देना एक मिनट। अच्छा, राइट है ना ये टेक्नोलॉजी, ये इनकी अलग है, दूसरे एडिटर अलग बताएंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। डिमांड ड्रिवन है अभी है। अच्छा ठीक है, नाउ फाइन, ओके। क्या लिखा है आपने? What is the consequences of technological advancement? एरो करके लिखो, it leads to industrial revolution. एरो करके लिखो, industrial revolution leads to urbanization. ठीक है, डैश करके लिखो,
देखो, अर्बनाइजेशन leads to the growth of reason. अब इसमें एरो करके लिखो, लिखो राइट, द पर्सन्स who were having the slave mentality इसमें ऐसे समझ के लिए लिखो, वर्कर्स comma will also develop will for recognition, looking at the lifestyle of masters. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फुकुयामा suggest that human society has rejected the models of power represented by persons like persons like Hitler. It means no one will be allowed to control the others. ठीक है, अब लिखो, hence the only way will for recognition can be satisfied in present times is not by controlling others but ensuring that we are not being controlled by others. ठीक है, अब लिखो राइट, hence people will require equality. अंडरलाइन करो, इक्वालिटी मीन्स इक्वल पावर. एरो करके लिखो, दिस is possible only in democracy. एरो करके लिखो, डेमोक्रेसी लिखो, लिबरल डेमोक्रेसी is based on the principle of political equality. एरो करके लिखो, hence all societies will automatically move towards ए लिखो, capitalism as an economic system
B, liberal democracy as a political system. अब फिर वही लिखो, capitalism the most efficient way of satisfying the basic needs ब्रैकेट में लिख दो नीड फॉर सर्वाइवल, वाई टू सेटल फॉर लेस। कम्युनिज्म तो उस बेसिक मिनिमम के लिए कर देगा, ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। और नेक्स्ट लिखो, राइट, लिबरल डेमोक्रेसी द बेस्ट possible means to satisfy the will for recognition of the largest number of people. ठीक है, तो this is what is to be understood. Have you understood? आप लिखते हैं critique of end of history. criticism या critique लिखे, critique of end of history. अब ऐसे लिखो, what is the essence of the argument of the end of history? एसेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट ये है, यूनिवर्सल कंसेंसस about liberal democracy universal consensus about liberal democracy as the best formula of good life. वो कह रहे हैं कि लगभग जो नहीं भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, आइडिया तो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं, ये मेन थीम है। तो अब लिखो क्रिटिसिज्म, लिखो, राइट, द मोस्ट prominent criticism of end of history has been provided by Samuel, Samuel, Samuel P. Huntington's thesis of clash of civilizations. अंडरलाइन करो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। देखो व्हाट इज द थीम ऑफ द थियरी, यस द थीम पॉइंट क्या है? देखो इट इज टू अर्ली टू प्रिडिक्ट that
there is a universal consensus over liberal democracy. और इसको समझो, इसका मतलब क्या है? इट इज टू अर्ली टू प्रिडिक्ट that liberalism has won the battle of ideologies. अब लिखो, सैमुअल पी हंटिंगटन प्रिडिक्टेड liberalism to face a new challenger. अंडरलाइन करो न्यू चैलेंजर, एरो करके लिखो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म. ठीक है, एरो करके लिखो, लिखो इफ द एंड ऑफ कोल्ड वॉर in 1991 added to the strength of Fukuyama's thesis, comma, Al-Qaeda's attack on World Trade Center on September 11, 2001 यूएस में इमरजेंसी नंबर क्या है? 9/11. सिंबॉलिकली भी उसी दिन किया गया. ठीक है, क्या लिखा है आपने? हाँ, सितंबर टू एडेड टू द credibility of added to the credibility of Huntington's thesis. अब लिखो, what is the current scenario? Who is winning? What is the current scenario? Who is winning the debate? लिखिए, of course Samuel P. Huntington, the teacher. हंटिंगटन ने जीत लिया. Of course Samuel P. Huntington, comma, the teacher of Fukuyama. एरो करके लिखो, लिखो हंटिंगटन इज no more relevant, या हंटिंगटन लिखे is so much relevant, लिखे so much relevant in the present. अंडरलाइन करिए प्रेजेंट, लिखिए व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट. एरो करके लिखो द रीमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर.
रीमेकिंग क्या चल रहा है, एरो करके लिखो, रीमेकिंग लिखो, नेशन स्टेट्स आर कोलैप्सिंग, civilizational states are emerging. फिर और इसका मतलब लिखो, द बाउंड्रीज बिटवीन, बहुत ध्यान से पढ़ो, ये सब IR के लिए चाहिए, ठीक है, द बाउंड्रीज बिटवीन external and internal conflicts are getting blurred. अब लिखो, people belonging to one civilization are coming together comma irrespective of the borders. अब लिखो, how people are defining themselves, how people are defining themselves, not through their nations, not through their nations, but through their civilizations or cultures. एग्जाम्पल लिखो, लिखो, राइट, द मास प्रोटेस्ट्स in European capitals in favor of Hamas ठीक है, एरो करके लिखो, thus the domestic consensus on foreign policies is breaking down. We are living in a global world now. The age of nation states has gone. Fortunately, in India, this is the time when nationalism is becoming strong. But I think nationalism in India as a strong is a Modi effect. ठीक है, और मोदी इफेक्ट ये है कि whatever he will say, people will accept. So you can't say that it is very organic and nationalism is becoming strong. Actually, nationalism is not becoming strong. It is Modi effect. It is not that nationalism will continue irrespective of Modi. This will not happen. So even if you see India coalition, they are also talking about nationalism, but people are not voting for nationalism. People are voting for the person. Today, tomorrow this person speaks something else, he will change the narrative. तो अभी वो तो सिर्फ नैरेटिव है एक्चुअली. तो ये इम्पैक्ट आप देखिए, पर्सनालिटी इम्पैक्ट या कैरिस्मा इम्पैक्ट. तो यू मे डिसएग्री विद द पॉलिसीज,
But if you look from the perspective of an analyst analyzing the leader, you cannot question. In fact, the popularity, what is the difference? This is the time when popularity of every leader everywhere has gone down, except Modi, not only in India, everywhere. तो वो कुछ अलग ही सितारे के साथ पैदा हुए एक्चुअली, मतलब सब चीजें वैसी होती जा रही है एक्चुअली, ये बहुत एक्सेप्शन है, दिस इज extreme exception. Nowhere, no leader is having the type of legitimacy. So people should not think nationalism is becoming strong. I don't think so. Nationalism in India will evaporate like steam, और कभी भी evaporate हो जाएगा. And nationalism is very fragile. And this is the time of personality politics, de-idealization of politics है. Ideology का relevance है नहीं, personality can overshadow. हाँ, तो ये हेजेमोनिक हो गया सिचुएशन. शायद मोदी जी को भी नहीं पता होगा जो आज मैंने एनालिसिस किया, मुझे खुद नहीं पता था. Suddenly I realized that it's not nationalism that is winning, it is Modi effect. Fine. Anyway, मेरे को लिखने का टाइम ही नहीं मिलता है. हाँ. What? Liberal has gone. मतलब उसकी बुक का नाम ही है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस कॉलन रीमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर. और आप लोग लकी भी हैं और अनलकी भी हैं, इन द सेंस you are at a time when world is changing, so it is like unfortunate for you, because what you cannot expect today is a stability. आपको कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी क्योंकि चीजें बदल रही हैं. आप यूपीएससी होने के बाद भी सरकार बोलेगी ये लो वीआरएस जाओ. Stability is the missing thing right now because the world is changing. But fortunate भी है आप, मतलब because in the transition period there is a lot of scope to emerge as a path breaker. So it's up to you how you deal with the time. तो टाइम और मूवमेंट को अगर समझेंगे, और as far as like Modi is concerned, you can say is a man of the movement. मूवमेंट साथ दे रहा है सबसे ज्यादा, और it is both for everyone this opportunity, because when disruption comes opportunities emerge, but how you look at those opportunities, because so many people, they could understood the opportunities which COVID has created, and those who kept on thinking on the similar line, or those who have been status quoist, they have been the losers. Fine. So it's always a game of winners and losers, and for persons with master mentality, instability is always better, because there is a scope for you to emerge as a leader. ठीक है, पता नहीं ये सब ज्ञान यान समझे. मैम हाँ मैम हाँ. नहीं, ऐसे होता है ना कि सफलता कब मिलती है, ऐसे कहा जाता है ना, पंडित जी बोलते हैं जब सब संयोग.
It's both way. हाँ, वो उतने दिनों से लगातार it won't Same be. thing happened in case of Gandhi also. There were other leaders during his time, but it was Gandhi's time. तो मोदी को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? मैन ऑफ मूवमेंट या हुज मूवमेंट, हुज टाइम. Whatever narrative he builds, you accept it, and you can see the influence of a person. मतलब one personality, how much power a personality can have. ठीक है, चलो आगे कहाँ पहुंचे? मैम मैम क्या? मैम ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन बदल रहा है क्या? मतलब ऐसे सोच सकते हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन नहीं बदल रहा है. ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? बॉर्डरलेस वर्ल्ड. अब बॉर्डर किसने बनाया? नेशन स्टेट्स ने. बॉर्डर्स कोलैप्स कर रहे हैं. नेशन स्टेट वाले बॉर्डर्स कोलैप्स कर रहे हैं एंड न्यू बॉर्डर्स आर इमर्जिंग. अब न्यू बॉर्डर्स कैसे इमर्ज होंगे? सिविलाइजेशनल बॉर्डर्स. नहीं, क्योंकि जो पहले था वो इकोनॉमिक बेस पे था, मतलब फ्लो ऑफ मनी. इकोनॉमिक बेस पर तो आज भी है. इकोनॉमी से किसी को दिक्कत नहीं, सभी जगह कैपिटलिज्म ही है. ग्लोबल नहीं है तो रीजनल है. बाकी कुछ नहीं बदल रहा है. बदल क्या चीज रही है? वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग. चेंजिंग ना, चेंज हो रहा है. तो द ऑर्डर दैट वाज बिल्ट इन 17th century, the Westphalian, around the nation state is collapsing, and the order which was there earlier, what was the earlier order? Age of empires. Fine. Ottoman empire, Christian empire. तो वही एज ऑफ सिविलाइजेशंस इमर्ज करके आ रहे हैं. तो लोग अपने स्टेट के साथ अलाइन नहीं है. पीपल आर नॉट अलाइंड विद देयर स्टेट्स. पीपल आर अपोजिंग देयर स्टेट्स. पीपल आर गेटिंग अलाइंड विद देयर रिलीजन्स. दे आर गेटिंग अलाइंड विद देयर कल्चर्स. तो past is coming back because history doesn't end, history repeats. ठीक है, चलिए क्या लिखा है लास्ट. अब ये सब इतनी बड़ी बड़ी बात है, पता नहीं तुम लोग उसका इंपॉर्टेंस भी समझते हो कि नहीं. एग्जाम के बियॉन्ड है ये सब बातें है. क्या 29 नहीं, आई लिव इन प्रेजेंट भैया. 29 का क्या ही पता है. चलो कहाँ पहुंचे? ओल्ड पे तो जा ही रहे हैं. यूक्रेन, वो सब तो कंफ्यूज्ड वॉर है. हाँ, यूएस का हेजेमनी है फिलहाल. अभी चलो आप देख सकते हो ना, मिडिल ईस्ट में this type of integration was not there earlier, but now that integration is happening and China is taking the advantage. मैम हाँ, एज एन आइडिया रॉन्ग नहीं है वो. एंड ऑफ हिस्ट्री को अगर आप आइडिया के फॉर्म में देखेंगे तो सही है, लेकिन उसका कहना ये था कि हिस्ट्री एंड हो गई और लोगों ने मान लिया कि ये सबसे सही सिस्टम है. तो एंड ऑफ हिस्ट्री नहीं हुई अभी, और चैलेंज है. ये है इसका थीम. चलो अब आगे कहां पहुंच गए? लास्ट लाइन. हाँ, cyclical means history repeats, but it will not repeat entirely exactly. It will change definitely.
मैम लास्ट लाइन लिखो। मैम ये जो आपने लिखवाया है, दस द डोमेस्टिक कंसेंसस ऑन फॉरेन पॉलिसी इज ब्रेकिंग डाउन, ये एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। अरे तो जैसे मान लो यूरोपियन स्टेट्स हैं, ब्रिटेन और ये सब, ये तो इजराइल को सपोर्ट करने चाहते हैं, लेकिन इनके यहाँ सब प्रोटेस्ट हो रहा है ना, वैसे कर नहीं पा रहे हैं। आज कोई नेशनलिज्म, नेशन फर्स्ट के नाम पे नहीं कर रहा है ना वेस्ट में। नेशन इंपॉर्टेंट नहीं, अमेरिका फर्स्ट नहीं रह गया ना इंपॉर्टेंट। जो एशियंस है वो तो एशियंस को वोट कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो अखबार पढ़ो, हिंदू छोड़ के अखबार पढ़ा करो। पंजाब केसरी हम बता रहे हैं, उससे समझ जल्दी आता है। और भैया हिंदी अखबार को भी पैसा दो, वरना लैंग्वेज खत्म हो जाएगी। चलो जल्दी, कहाँ पहुंचे? हाँ, तो मतलब सैमुअल पी हंटिंगटन इज बिकमिंग ऑल द मोर रेलिवेंट, दिस इज व्हाट इज सेइंग। ठीक है, अब लिखो व्हाट आर द मेजर आर्ग्यूमेंट्स ऑफ हंटिंगटन। पहला लिखो right, he takes the cyclical view of history and not the evolutionary view. एरो करके लिखो, according to him history does not end, history repeats. अब लिखो what we are witnessing. देखो we are witnessing the return of past. अब लिखो what has been the basis of politics in the past. What has been the basis of politics in the past? लिखिए क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। इसको सिंप्लीफाइड समझ करने के लिए लिखिए ऑब्लिक पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी। Is BJP doing identity politics? Are they doing economic and democratic politics? No, politics of identity है। ठीक है, it is not politics of liberalism and all, it's a politics of identity. इक्वालिटी वाली नहीं, ठीक है, किसी को इक्वालिटी नहीं चाहिए, आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। लोग ये तो इंडिया में लोग कर नहीं पा रहे हैं, वरना कल कह दे डेमोक्रेसी खत्म कर दो, मोदी जी हम आपके साथ, कह देंगे लोग। लेकिन कोई पहल नहीं कर पा रहा है, तुम लोग पहल करो एकदम। हम क्यों करें भैया, हमारे पीछे भैया क्यों पड़े, हमने क्या बिगाड़ा? हमको जीने दो, हम टीचर हैं। हाँ हाँ, मास्टर मेंटेलिटी, मास्टर ही तो है। चलो चलो, नहीं, वाह वाह, चलो चलो। अब नेक्स्ट जल्दी लिखो, क्या है? पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, और वो कह रहा है पॉलिटिक्स ऑफ रीजन। ठीक है, तो अब पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, लेकिन अब इसको पहले समझो, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले लिखो व्हाट इज सिविलाइजेशन।
लिखिए द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चर। ठीक है, कल्चर का ब्रॉडेस्ट जो है वो सिविलाइजेशन है, ग्रेट लार्जेस्ट। ठीक है, अब लिखो, लिखो राइट, एट प्रेजेंट he talks about 8 prominent civilizations and analyze the potential of the conflicts. What are these 8 civilizations? पहला लिखो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जैसे 6 आईज वाइज ये सब नहीं है, इन लोगों का अलग है कहानी। वेस्टर्न सिविलाइजेशन, एरो करके लिखो द क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, इसी को ये लोग कहते हैं लिबरल डेमोक्रेसीज, लिबरल डेमोक्रेसीज। तो इसका राइट, द कोर कंट्री इज यूएसए। सेकंड लिखिए ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स सिविलाइजेशन, right? The core country is Russia. Next, Cynic civilization, SINIC, Cynic civilization. और रीजन भी आप समझ सकते हैं, राइट? कोर कंट्रीज चाइना, सारे आसियान वाले वहीं चले जाएंगे, हमने तो देख के आए, हम देखा है, मेरा सारा भ्रम खत्म हो गया एक्टिस्ट का। तो ये सब उधर ही जाने वाले हैं बिकॉज उनका सिविलाइजेशन एक है, कोर कंट्री। तो वो ईस्ट में, ये सोचो यूएस रोके ना जापान भी चला जाए, जापान कोरिया ये सब उधर ही शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो हिंदू सिविलाइजेशन, बहुत छोटा स्पेस है, ज्योग्राफिकल स्पेस, मतलब नेपाल मैक्सिमम, थोड़ा बहुत श्रीलंका। ठीक है, नहीं श्रीलंका ये सब। हिंदू सिविलाइजेशन लिखे, कोर स्टेट इज इंडिया। नेक्स्ट राइट, जापानीज सिविलाइजेशन का तो और बेकार ही है, कोर स्टेट जापान। नेक्स्ट इस्लामिक सिविलाइजेशन, देखो there is still no core state around which it is revolving. There is still no core state. एरो करके लिखो, देखो ईरान हैज अ पोटेंशियल, अब लिखो व्हाट इज बेस्ट फॉर यूएसए। अरे लिखो भैया, लिखो, या तो कौन ना समझाए, लिखाते जाए। लिखो इसमें व्हाट इज बेस्ट फॉर यूएसए, लिखो टू इंश्योर दैट
no core state emerges in the Islamic world. अब पता नहीं, ऐसे ईरान है, टर्की भी बन सकता है, सऊदी तो नहीं लेकिन कतर, ठीक है, तो दे शुड नॉट कम टुगेदर, ये इनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. अब लिखो हाउ वेस्ट कैन डू सो. हाउ वेस्ट कैन डू सो. लिखो बाई एक्सप्लॉइटिंग the internal divisions oblique inner fault lines in the Islamic world. Inner fault lines in the Islamic world. Inner fault lines underline करके लिखो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट. यही होप है. इसीलिए अगर ईरान एंड सऊदी कम्स टुगेदर इट्स अ प्रॉब्लम. और यूएस क्या, चाइना वही करेगा, इनको साथ लाने की कोशिश करेगा. ठीक है. नेक्स्ट राइट, अफ्रीकन सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन भी कहना बेकार, ठीक है, इनका कुछ नहीं होने वाला. देखो नो कोर स्टेट, सब ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब ट्राइबल वे ऑफ लाइफ है ना. नो कोर स्टेट अभी तो है नहीं फिलहाल. नेक्स्ट लिखो लैटिन अमेरिकन. कैन यू एवर इमेजिन एनी अफ्रीकन कंट्री? नो नो नो. नेक्स्ट एनीवे नहीं कुछ, वो तो साउथ अफ्रीका इज अ वेरी स्मॉल कंट्री. इमेजिन करना था एनी कोर स्टेट, and to stop the core states they are promoting intertribal rivalries so much. What is that? Congo? No one will accept, because tribal societies, from tribe to tribe they will fight. Next लिखो Latin American. देखो right, as of now no core state. ठीक है. अब लिखो why civilizations will clash. Right, because the differences between them are so fundamental. लिखो so fundamental, arrow करके लिखो, means irreconcilable. Irreconcilable, cannot be reconciled. देखो for example, we can talk about the global debate on hijab. So the Islamic view is very opposite to the Western view, and no reconciliation is possible. They are so fundamental differences. अब next लिखो historically also there have been clashes among
civilizations. History moved by this only. Clashes among the civilizations. ठीक है, अब लिखो which clash is most prominent. ठीक है, पहला लिखो हिस्टोरिकली, डैश करके लिखो सिविलाइज, लिखो क्लैश बिटवीन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इस्लामिक सिविलाइजेशन. हिस्टोरिकली था, लेकिन तब था जब ओटोमान एम्पायर था, जब ये एक साथ एक एम्पायर था. हिस्टोरिकली वो बात की जा रही है. ठीक है, अब लिखो राइट इस्लाम एंड द वेस्ट हैव एसेंशियल कॉन्फ्लिक्ट. एरो करके लिखो, लिखो राइट दे शेयर ब्लडी बॉर्डर्स. lot of bloodshed has already happened. Next लिखो both religions are missionary religion. Missionary means expansionist. Next लिखो both religions are universalist. मतलब टोटलिटेरियन है. यूनिवर्सलिस्ट और टोटलिटेरियन, इसका मतलब है ओनली वन वे ऑफ लाइफ. तो इधर किंगडम ऑफ क्राइस्ट और किंगडम ऑफ प्रॉफिट, ऑल और नथिंग वाला रिलीजन है. ओनली वन वे ऑफ लाइफ. इसी में ब्रैकेट में लिखो, लिखो राइट ऑल और नथिंग अप्रोच. ठीक है, अब लिखो व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन. लिखो so long there is no integration comma west can prevail. west can prevail in Islamic world. ठीक है, अब लिखो इसी में लिखो, लिखो he calls the conflict between Islamic world and the Western world. अब ये बुक 97 के आसपास की है. ठीक है, एरो करके लिखो वर्ड एज पेरिफेरल कॉन्फ्लिक्ट. पेरिफेरल कॉन्फ्लिक्ट मतलब इरिटेटिंग है, बहुत ज्यादा खतरा नहीं. 97 की बात है ये. ठीक है, अब सेकंड लिखो प्रेजेंट टाइम्स. हिस्टोरिकली इनसे झगड़ा था. ठीक है, प्रेजेंट टाइम्स राइट द कोर कॉन्फ्लिक्ट
of the West is with China. ठीक है, because China is a core country. ठीक है, अब लिखो what is the aim of China? अब लिखो not just to challenge the hegemony of the West, ब्रैकेट में लिखो US, but also to displace the hegemony of West. अब लिखो what should be the biggest concern for the West? देखो West should ensure that China and Islamic world do not come together. अब लिखो what is happening? Doomsday is coming actually. What is happening? देखो bad times for the West. Bad times for the West. Doomsday लिख दो, DOOMS, Doomsday, कयामत का दिन करीब आ रहा है भैया. Doomsday for the West. ठीक है, अब लिखो राइट वाई. लिखो एक्सिस बिटवीन China, axis between China and Iran. China and Iran. इसके साथ साथ लिखो China has axis, AXIS, axis between China and Iran या पाकिस्तान. China Pakistan relationship तो sweeter than honey है ना, deeper than ocean. ये सब थोड़ा खतरनाक. अब लिखो besides China has good relations with all Islamic countries. What has been USA's card? Uyghurs, but that's not working. Nobody's paying attention. ठीक है, China has a good relations with all. ठीक है, अब लिखो what is nightmare for the West? लिखो BRI. BRI. BRI क्या है? फिजिकल इंटीग्रेशन. फिजिकल इंटीग्रेशन between China and Islamic world. अब लिखो राइट. Thus, according to Samuel P. Huntington, the end of Cold War, end of Cold War is not a movement of victory.
It's a silence before a storm. That's all. It is not the end of the moment of victory for the West. ये तो rise of rest है, victory थोड़ी है. West should be ready for new battle. फिर अब लिखो right. Thus, it would be wrong to think that West has been successful in establishing its hegemony. Hegemony underline करके लिखो. Cultural, ideological. There is no universal consensus for all these things. ठीक है. अब लिखो who is responsible for, according to Huntington, who is responsible for decline of US hegemony? Yeah, Western hegemony. लिखो US itself. एरो करके लिखो wrong policies of US in the Middle East. रॉन्ग पॉलिसी में अंडरलाइन करके सबसे पहले लिखो राइट. यूएस पहला फर्स्ट रीजन है. यूएस इन्वॉल्वमेंट इन अफगानिस्तान वॉर या सिविल वॉर इन अफगानिस्तान. देखो राइट. इट इज बिकॉज ऑफ यूएस that Mujahideen's religious fighters, Mujahideens were successful in defeating USSR. एरो करके लिखो. लिखो राइट. They thought that if they can defeat one superpower, they can also defeat the other. क्या बोलते हैं, शेर के हाथ में खून लगा दो. जुबान पे है? खून लगा दिया इन्होंने. अब उनको मजा आने लग गया जीतने में. अब इनका विल फॉर रिकॉग्निशन स्टार्ट हो गया. ठीक है. बंद हो गया. बंद क्यों किया कॉपी? अच्छा, क्या लिखा है लास्ट लाइन? तो इनको मतलब सडनली कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया. ठीक है. अब सेकंड लिखो. सेकंड रीजन क्या है? लिखो यूएस पॉलिसीज इन मिडिल ईस्ट हैज क्रिएटेड हैवॉक. लाइफ पूरा बर्बाद कर दिया वहां पे. Destabilized everything. Havoc. Destabilized everything.
तो लोग यूएस को पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम समझते हैं वहां पे। तो जैसे वो स्टार्ट हो जाएगा, व्हेन यू यूज योर हार्ड पावर एंड ऑल, दैट हेजेमनी गोस फाइन। अब लिखो, राइट, इट इज बिकॉज ऑफ यूएस देयर हैज बीन so much frustration in the Middle East. Frustration underline करके लिखो, giving rise to terrorism. Because they are just helpless. So what is terrorism? Terrorism is a weapon of weak. Fine. So US made them so helpless that either do or die. There is no point living in that situation. So it has become a hell. So people may think that they can think of a better life than living. So that type of mentality has come up. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, व्हाट इज गोइंग अगेंस्ट यूएस। व्हाट इज गोइंग अगेंस्ट यूएस? लिखो, डेमोग्राफी ऑफ मिडिल ईस्ट। लिखो, यंग पॉपुलेशन। young population which is not employed, lack education, and has never seen stability. Young population which is uneducated, unemployed, and has never seen good times, na, stability. Same problem has been in Kashmir also. Fine. So the children born and brought up in war situations, you can't imagine the impact on human psyche, what can happen with the people who live in that environment, the environment of fear and frustration. So US itself has done all these things in that case. Ab likho, right, thus if Fukuyama, if Fukuyama look at the movement as the victory of the West, Huntington looks at the movement as a paradox. अंडरलाइन करो पैराडॉक्स। वो इमीडिएट आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर की बात है। तो लिखो, राइट, द पैराडॉक्स इज वेस्ट वाज नेवर as strong comma at the same time West was never as weak. As strong because at that time no enemy was so strong, but at that same time the sand was just moving out of their feet. Fine. So it's a paradoxical movement, and he says that still lot can be done, managed, but continuous wrong policies of US landed up US where it is. Yeah.
है, सब है ना। नहीं, ये किताब 97 के आसपास की है। तो पहले वॉर में तो सब यूएस के साथ थे, 2001 तक भी साथ थे, लेकिन 2003 से इनका दिमाग खराब हो गया, इन्होंने इराक और सब अननेसेसरी वॉर्स स्टार्ट करी, तो खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया। नहीं, हेजेमनी तो डिक्लाइन हुई है यूएस की। मतलब अट्रैक्शन फॉर वेस्टर्न वैल्यूज हैज गॉन। आप खुद देखेंगे कि मतलब प्रेजेंटली आप देख सकते हो ना कि अदर कल्चर्स के वैल्यूज बढ़ या अट्रैक्शन बढ़ गया है। इवन सब लोग मोमो खाने लग गए। हाँ, हाँ, पिज्जा छोड़ के अभी मोमो टाइम आ गया है, राइट। तो चाइनीज इन्फ्लुएंस हैज गॉन, इवन अफगानी चिकन एंड ऑल हैज स्टार्टेड, राइट। जो भी है, तो अभी पिज्जा बर्गर इज नॉट दैट attractive, so hegemony is declining. Chalo, my hegemony also declined and you all stopped. Thank you.